everyone, welcome to my channel. Today we are going to talk about something that has created a great impact in my life when it comes to being organized and staying more disciplined. Meal planning. So one of the major challenges that I faced while starting my journey was finding the right information. There are tons of videos available on YouTube and there are so many blogs talking about meal planning, but none of those are catering to the Indian audience. We have very different needs. We don't meal prep, we just need to meal plan, and which is why it took me so long to perfect what works for me. Every Sunday evening, I plan the meals for the complete next week, and it helps me save a lot of time and a lot of money as well. Step 1. Take a stock of everything that you already have. क्या सब्जी अवेलेबल है, क्या बाकी है, लास्ट टाइम लिया हुआ पनीर अब तक खत्म हुआ है या नहीं, जो चने सोक किए थे वो आधे बच गए हैं. Make sure that you are aware of everything that you have in your pantry or your fridge. Because we all know buying in bulk is what's gonna help you save money. पर अगर हम लोग ये भूल गए कि हमारे पास ऑलरेडी क्या अवेलेबल है तो वो वेस्ट होके वो पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे. सो विच इज़ वाई इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कोई भी मील प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले टू नो वॉट ऑल यू ऑलरेडी हैव. फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज बाय ऑल द पनीर, चीज स्लाइसेस, butter, everything in bulk, so basically for the whole month, so that I don't have to keep buying it again and again. But every time that I'm planning any meals, I go back and check कि पनीर अवेलेबल है क्या, कभी आधा यूज करके रखा हुआ है क्या, so that I can incorporate all of that in this week's planning. Step number 2, actually working on the list. सो अभी जब आपको पता है कि क्या इंग्रेडिएंट्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, नाउ यू विल स्टार्ट राइटिंग अप हर एक दिन ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या बनाना चाहते हैं. व्हाट आर दीज डिशेज दैट यू आर प्लानिंग ऑन मेकिंग. अगर आप शाम में 4 बजे को स्नैक करना चाहते हैं या यू वांट टू मेक दैट, सो ऑफकोर्स फील फ्री टू इंक्लूड दैट इन द लिस्ट एज वेल. So I usually write everything down in a notebook of what the ingredients that I have and क्या dishes में plan कर रही हूँ, and then I actually have like a meal planning magnet calendar that I put on the fridge, जिस पे मैं once I have the complete plan ready, I put it on the fridge so that everybody in the house is aware of क्या बन रहा है, so that my husband doesn't come to me and ask कि आज डिनर में क्या बन रहा है, कल लंच में क्या बन रहा है. Everybody knows कि क्या plan है for the whole week, and I don't get anxiety thinking about क्या बनाना है, कब बनाना है, कैसे बनाना है. And putting this plan up on a visible surface is gonna help you in meal prepping and saving some time as well. So basically, if दोपहर में you have some time available and you know कि शाम के लिए कुछ सब्जीज कट करके रखनी है, because you have it in front of you, आते जाते आपको दिख रहा है, and if you know कि डिनर के लिए ये 4 सब्जी कट करनी है, and if you have 15-20 minutes, you can just do that right away, rather than डिनर जब भी बनाना स्टार्ट कर रहे हो तब भी रियलाइज करना है कि अरे ये सारी सब्जी कट करनी है and all of that. So basically this display is gonna help you saving time as well. Now coming to step 3. जब आपके पास एक्चुअल में पूरी लिस्ट रेडी है, आपको हफ्ते भर में क्या बनाना है और क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें से ऑलरेडी आपके पास है, इज व्हेन यू एक्चुअली गो एंड शॉप. सो हमारे यहाँ पे ऑफ कोर्स आई एम अज्यूमिंग सारी इंडियन हाउस होल्ड्स में बेसिक जो सप्लाईज है वो हम लोग महीने के लिए खरीद लेते हैं, कुछ घरों में तो साल भर के लिए, बट लेट्स जस्ट अज्यूम कि जो बेसिक ग्रोसरीज है वो हम लोगों ने महीने के लिए खरीद ली है. सो हियर वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट इंग्रेडिएंट्स दैट वी आर गोना नीड, which are like veggies and eggs and meats, whatever that you guys want for this week's meals. So work on your list accordingly. And सबसे important चीज है stick to the list. There's a reason that you've spent so much time and effort into figuring out आपको क्या बनाना है, कितना ingredients उसमें से available है. So the most important thing is जो list में है you will just get those things. Doesn't matter अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं या you're going to the shop. If you really like an ingredient और कुछ देख के अगर आपको लग रहा है कि यार ये मुझे डेफिनेटली बनाना चाहिए था, मैंने क्यों नहीं सोचा, तो just write it down and use that in next week's planning. But do not defer the list, because this is how you're going to save all the money. Another bonus tip when it comes to meal planning, I have a notes फोल्डर ऑन माई फोन, जहाँ पे इंस्टाग्राम पे कभी स्क्रॉल करते हुए कुछ बहुत अच्छी सी डिश दिख गई तो आई नोटेड डाउन कि अच्छा ये बना सकते हैं. और इट हैपन्स सो मच दैट वी फॉरगेट कि अरे दिस इज समथिंग दैट वी रियली एंजॉय. फॉर एग्जाम्पल, hummus is something that we keep forgetting that we really like, and it is so nutritious and
फिलिंग कि एक पूरा मील बन जाता है उसमें. एंड एवरी वंस इन अ वाइल, लाइक इन अ कपल ऑफ मंथ्स व्हेन आई रियलाइज कि यार हमस बना सकते हैं, एवरी टाइम आई एम लाइक यार मैं भूल कैसे जाती हूँ, इतने दिन हो गए बना के. ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, मतलब कोई भी टाइप की दाल बाटी हो गया, कोई टाइप का पास्ता हो गया, कुछ भी है जो स्किप हो जाता है कि यार ये भी तो बना सकते हैं, दिस इज अ गुड मील ऑप्शन. सो विच इज़ वाई आई हैव लाइक अ फोल्डर जहाँ पे ये जो सारी इंपॉर्टेंट डिशेज है जो मुझे लगता है मैं भूल जाती हूँ, सो आई मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल ऑफ दैट. सो वेन एवर आई एम स्टक इन द वीक प्लानिंग, आई जस्ट गो एंड रेफर टू दैट लिस्ट कि यार समझ में नहीं आ रहा, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं बन रहा है ये वीक में, चलो उसमें से कुछ बना लेते हैं. बिकॉज यू नो कभी आपके पास टाइम है, कब नहीं है, सो यू कैन प्लान ऑल ऑफ दैट ऑल्सो. सो दैट्स जस्ट अनदर बोनस टिप for you to plan the week. And now coming to the fourth and the final step, whenever I talk to anybody about meal planning, सब लोग का यही कहना होता है कि यार ठीक है इतना लिस्ट तो बना लिया, सब कुछ कर लिया, but what if you don't want to eat that particular dish on that particular day? And this is exactly why I say कि कोई भी organizational concept हो, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड मेक इट योर ओन. जो आपको सही लगता है वो करो उसके साथ में. सो हाउ आई लुक एट इट इज, आई लुक एट दिस एज अ स्ट्रक्चर. दिस इज फॉर मी टू काइंड ऑफ नॉट गेट इन टू द साइकिल ऑफ क्या खाना है पता नहीं, तू बता, फिगर आउट करते हैं, कुछ मंगा लेते हैं, अभी मन नहीं है बनाने का, एंड ऑल ऑफ दैट. सो दिस स्ट्रक्चर, दिस मील प्लान इज जस्ट फॉर मी टू रेफर टू समथिंग जिससे मैं ये पूरे साइकिल में नहीं जाऊंगी कि यार क्या करना है पता नहीं है. So this is how I use it. I use it as a structure. But there are a lot of YouTube gurus जिनका ये कहना है कि मन नहीं है तो भी यही खाओ. Stick to the list and only then you will be successful at meal planning. But that's not how I look at it. मुझे अगर कोई पर्टिकुलर दिन पे मेरा बिल्कुल ही मन नहीं है कोई चीज़ बनाने का, या घर पे किसी का वो चीज़ खाने का मन नहीं है, एंड वी हैव अनदर थिंग इन आवर माइंड, तो हम लोग डेफिनेटली स्विच कर लेते हैं. आई एम नॉट वेरी रिजिड अबाउट दिस. आई एम जस्ट यूजिंग दिस एज अ स्ट्रक्चर कि कभी कंफ्यूजन ना हो या मुझे ये एंग्जाइटी ना हो कि यार कल क्या होना है पता नहीं है, परसों क्या होना है. बिकॉज पर्सनली टू मी वेकिंग अप विदाउट नोइंग क्या करना है is very messy. Then I keep kind of postponing it, procrastinating कि ठीक है फिगर आउट कर लेंगे, जब होना है देख लेते हैं, सिर्फ ब्रेकफास्ट के बारे में सोचते हैं, लंच फिगर आउट करते हैं. सो इतने वेरिएबल्स आई डोंट लाइक इन माई डे. सो यू कैन बी एज रिजिड और एज फ्लेक्सिबल एज यू वॉन्ट विद दिस. मैं इसको एज अ स्ट्रक्चर के जैसे यूज करती हूँ. इट इज कम्प्लीटली अप टू यू. आपको लगता है कि पूरा फॉलो करना चाहिए, आप पूरा कर सकते हो. आपको लगता है फ्लेक्सिबल रहना है, कभी करना है कभी नहीं करना है, आप वो भी कर सकते हो. द होल पॉइंट इज हैविंग एन आइडिया कि आपको क्या करना है एंड देन फिगरिंग आउट हाउ यू वांट टू गो अबाउट इट. एंड ये सारी चीज़ें ऐसी भी नहीं है कि आपको डे वन से ही ये सारे आंसर्स आपके पास होने चाहिए. ट्राई इट, एक बार स्टिक करके देखो, एक बार थोड़ा फ्लेक्सिबल रह के देखो, फिगर आउट व्हाट वर्क्स फॉर यू. बट दीज आर वेरी सिंपल स्टेप्स, और ये छोटे स्ट्रक्चर से ही this can be the first step of having a very disciplined life, because you are freeing your brain from a function जो कि constantly करना पड़ता है. Coming up with 3 or 4 proper meals every single day can be very tiring. And ये प्लान करके आप वो एक चीज़ से काफ़ी हद तक फ्री हो सकते हो. So this has worked wonders for me. बहुत ज़्यादा नई चीज़ें मुझे ट्राई करने को मिली है, बहुत शांति मिली है मन को, बहुत एंग्जाइटी पे मेरे को हेल्प हुआ है. सो या, दिस इज हाउ आई डू इट. होपफुली आई आंसर्ड सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू हैड. इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस, डू पुट देम in the comments and I will kind of help you out in whichever way that I can. And I really hope that I inspired you to meal plan and do start this journey. Share your experiences with me. And yeah, I'll see you in the next one. Bye bye.